this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm giving you an update regarding the media briefing which is done today by the ANYA, that's All Nisi Youth Association. So the All Nisi Youth Association, that's ANYA in Seoul, has asked the Commissioner, Land Management, Government of Arunachal Pradesh to ensure a fair, transparent and legally sound recovery process in connection with alleged excuse or false compensation under the Ladakh to Sarli Frontier Highway project. In a representation submitted to the Commissioner on August 10, that's today, ANYA said that while it supports appropriate action against individuals found responsible for irregularities, genuine landowners and lawful beneficiaries who have received their legitimate compensation should not be made to suffer for the alleged wrongdoing of others. The association called for recovery to be strictly limited to persons and amounts specifically identified as excess or falsely claimed in the official inquiry or report. It opposes any blanket or indiscriminate recovery from beneficiaries. So ANYA, they further demanded that only the excess or falsely claimed amount be recovered from the concerned individuals, while legally due compensation already received by genuine landowners should remain protected. The association also proposed constitution of a formal recovery committee to oversee and monitor the process in an impartial manner. It said affected persons should be given adequate opportunity to present their grievances, produce relevant documents, and have their cases examined in accordance with official findings and applicable rules. Seeking greater public accountability, ANYA called for preparation and publication of a transparent recovery report detailing the amount identified for recovery, the amount actually recovered, and action taken against these found responsible. So accountability must be ensured against those responsible for irregularities, but genuine landowners and lawful beneficiaries should not suffer for the alleged wrongdoings of others, ANYA stated. So there was a media briefing regarding this, and let me show the glimpse of footage of that media briefing. Good afternoon. आज ऑल नेशन यूथ एसोसिएशन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू द कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग करना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से। आप सब ने जानते हैं, जो सभी जनता और व्यूअर्स, लादा और सरली इनफेमस एक स्कैम हुआ है और करप्शन हुआ था। उसके खिलाफ में ऑल नेशन यूथ एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट ANYA की ओर से इशू रेज किया और उसके बाद उधर से पूत मार्च करके सेपा से ईटानगर पहुंचने के बाद हमें इशू को सौंपा और हमने ANYA ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के साथ हम लोग ने इशू को टेकअप किया और इशू को सरकार के साथ बात किया और सरकार की तरफ से जो हमारा डिमांड्स था उसको सरकार ने सुना और रेस्पॉन्स किया। और इस चीज़ को आज मैं अपडेट देने के लिए हमारा साथ मेरा राइट में है माय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तिची एपा और मेरा लेफ्ट में है श्री रमेश तकू, प्रेसिडेंट ईस्ट कामेंग ऑल नेशन यूथ एसोसिएशन यूनिट। हमारा डिमांड ये था कि इमीडिएट रीवेरिफिकेशन ऑफ पैकेज 1 to 5 ऑफ लादा टू सरली हाईवे था और दूसरा जो इमीडिएट
recovery of misuse funds और पोल्स बिल के उसको लेके हम लोग ने डिमांड किया था। और हम लोग ने 3 पॉइंट में अर्ली हैंडिंग ओवर ऑफ प्रोजेक्ट टू द यूजर एजेंसी और कंस्ट्रक्शन एजेंसी फॉर टाइमली कमेंसमेंट ऑफ वर्क, ये तीसरा जो हमारा डिमांड था। और चौथा हमारा डिमांड ये था कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मग डंपिंग जोन्स इंश्योरिंग नो डिस्टर्बेंस टू फ्लोरा fauna or the environment and preventing any irregularities का बारे में। और पांचवा strictly legal action against all individuals found involved in irregularities as for the fact finding committee and re-verification report। और चौथा fair and urgent compensation to all deprived beneficiaries on war footing basis। ये 6 पॉइंट हमने जब अन्या ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने इशू को सौंपने का बाद हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये मेमोरेंडम और डिमांड रखा था। तो सरकार ने हमारा जो डिमांड सुन के जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को लेके सरकार ने री-वेरिफिकेशन किया पैकेज 2, 3, 4, 5 और उसका रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कामेंग को ऑर्डर दिया है कि जिसका पेमेंट ज़्यादा है उसको रिकवर करना है और जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है, चूक गया, उसको रीअसेसमेंट करके देना है बोल के सरकार ने ऑर्डर दिया। उस बेस में सरकार ने उत्तर दिया। और दूसरा जो मिसयूज हुआ है और पोल्स बिल हुआ है उसको भी साथ में रीअसेसमेंट कमेटी का रिपोर्ट का अनुसार उसको भी एक्शन ले रहा है। और जो तीसरा जो अर्ली हैंडिंग ओवर ऑफ प्रोजेक्ट टू द यूजर एजेंसी, ये पेंडिंग है। ये पेंडिंग क्यों है बोलने से, जब तक जो री-वेरिफिकेशन का रीअसेसमेंट का जो मैटर को लेके जब तक हमारा बेनिफिशरीज को अगर पैसा नहीं देता तो ये प्रोजेक्ट को या ये उसको हैंडिंग ओवर नहीं कर सकता यूजर एजेंसी को, ये पेंडिंग रहा है। और चौथा जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मग डंपिंग, जो जहाँ में हम लोग डंपिंग एरिया को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है उनके, ये चीज़ भी पेंडिंग है क्योंकि ये जब तक रास्ता शुरू नहीं होगा, कटिंग शुरू नहीं होगा, ये मग डंपिंग का रिगार्डिंग अभी बात नहीं कर सकते हैं। पांचवा जो स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल इंडिविजुअल्स, जिसको गलती पाया गया उसको एक्शन लेना बोल के हम लोग ने डिमांड किया था। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा जो स्टेट का जो भी एजेंसी या पुलिस डिपार्टमेंट या एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह से जो इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर है या ब्रोकर है उसको अरेस्ट किया गया एज पर री-वेरिफिकेशन और रीअसेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार। और चौथा 6th पॉइंट में जो फेयर एंड अर्जेंट कॉम्पेंसेशन टू ऑल डिप्राइव्ड बेनिफिशरीज, जो डिप्राइव फैमिली को और बेनिफिशरीज को कॉम्पेंसेशन देना था, उस चीज़ को लेके अभी कन्फ्यूजन होके बैठा। तो मैं सरकार की तरफ से ज़रूर सुना है हमारा डिमांड को, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये रह गया कि हमने सरकार को ये नहीं बोला था कि जितना भी उस कॉम्पेंसेशन में बेनिफिशरी पैसा लिया है उसको रिकवर करने के लिए हमने सरकार को नहीं बोला। हमने सरकार को ये बोला है कि जिसका बिल पोल्स बिल बना के और जो डिफ्राइव होके किसी को डिफ्राइव करके पोल्स बिल बना के, फोर्स बिल बना के, पेग बिल बना के पैसा लिया, उससे रिकवर करने के लिए हमने डिमांड किया था। आज देखा है कि सरकार का तरफ से एक ऑर्डर निकाल दिया और जितना भी जेन्युइन लैंड ओनर से भी आप रिकवर कर रहे हैं और जेन्युइन जो बेनिफिशरी से भी आप पैसा रिकवर कर रहे हैं,
उसका कारण से अभी इस कमिंग में और स्पेशली लादा सरली जो फ्रंटियर हाईवे में ह्यू एंड क्राई हो रहा है। तो मैं आज यही बोलना चाहूँगा और सरकार को या हमारा जनता को मैं यही क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि टीम आन्या का तरफ से कभी भी किसी इंडिविजुअल को उसका पैसा रिकवर करना है बोल के ऐसा नहीं था। जिसका बिल पोल्स हुआ है और पोल्स किया गया पेग बिल बनाया है और एक्सेस बिल बनाया गया, उसको रिकवर करके जो डिप्राइव फैमिली है उसको आप बेनिफिट करना है बोल के हम लोग ने ये डिमांड था। तो आज देखा है कि हमारा इस कमिंग का जो फ्रंटियर हाईवे में जो लोग अफेक्टेड है, जिसका जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिला और जो मिलना चाहिए उसको भी मिला है, लेकिन उसको सरकार आज आप रिकवरी के तौर पर वापस ले रहा है। तो इसलिए मैं सरकार को लाउड एंड क्लियर मैं यही बोलना चाहूँगा इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से, आप जिससे भी रिकवर कर रहा है तो प्रॉपर आइडेंटिफाइड करके, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एक बिल है, उसका बिल जो जैसे कि 1 करोड़ 15 लाख है, उसको बेनिफिशियरी को दिया गया है कि 45 लाख, 70 लाख कहाँ गया है, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए हम लोग ने बोला। जैसे मान लो एडजेसेंट चैनल्स में, एक चैनल्स में आपका एक बिल को 2,06,000 कुछ बना दिया और दूसरा सेम इमीडिएट चैनल्स नंबर को आपने 2 करोड़ बिल बना दिया, तो 1 करोड़ 98 लाख जो एक्सेस बनाया उसको रिकवर करने के लिए बोला। हम लोग ने कभी ये नहीं बोला कि ये 2,06,300 कुछ ऐसा अमाउंट वाला को भी उसको 1 लाख को रिकवर करो बोल के हम लोग कभी नहीं बोला है। तो इसलिए सरकार को मैं यही फिर से मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट और कमिश्नर के थ्रू से मैं एक मैसेज और रिप्रेजेंटेशन आज हमारा टीम हम लोग सबमिट करके आया है। नंबर 1, recovery should be restricted to the persons and amount specifically identified as excess false billing in the official inquiry or report। ये जो जिसका बिल जो एक्सेस हो गया, पोल्स बिल हो गया, आइडेंटिफाई किया गया, उसको आप रिकवर करना चाहिए। रिकवरी शुड नॉट बी मेड indiscriminately from all beneficiaries as this may cause unnecessary hardship and confusion to genuine landowners। जो लोग आज जिसको किसी को जेन्युइन लैंड ओनर हैं उसको भी आप रिकवर करने के लिए ऑर्डर दे रहा है और आप नोटिस जारी कर रहा है, ये नहीं करना है। ये हमारा आन्या की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है सरकार को। और ये दूसरा शब्द में भी ओनली द एक्सेस और falsely claim amount should be recovered from the concerned individuals। जैसे कि किसी को दूसरा को जिसका जेन्युइनली उसका बिल आता है 30 लाख और उसको हमारा जो डिपार्टमेंट या जो ऑफिसर या जो भी ब्रोकर की तरफ से बिल बनाया है 2 करोड़, तो हमने ये डिमांड किया है कि वो 30 लाख को जेन्युइन लैंड ओनर्स तो लेना पड़ेगा, लेकिन 1 करोड़ 70 लाख को रिकवर करना है। उसको रिकवर करके किसको देना है, जो डिप्राइव अफेक्टेड लैंड ओनर को देना है उनके, ये हम लोग ने डिमांड किया। तो अभी वो 1 करोड़ 70 लाख को रिकवर करते करते उल्टा जेन्युइन जो 30 लाख जिसको मिलना चाहिए था उसको भी 15-20 लाख आपने रिकवरी करने का जो नोटिस है या ऑर्डर जारी करें, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग ने ये भी पॉइंट रखा है, ए प्रॉपर ऑफिशियल रिकवरी कमिटी में काइंडली टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू oversee and monitor the recovery process in transparent and impartial manner। The committee should provide sufficient opportunity to the affected person to present their grievances, verify relevant documents, conduct the recovery strictly in accordance with the official binding and applicable rules। तो हम लोग ने ये एक मांग रख रहा है कि सरकार को, अभी आप डीसी को एक ऑर्डर दे दिया कि रिकवरी करो, लेकिन डीसी नोटिस दे दिया
नोटिस बोर्ड में नाम दे दिया, सो कोज नोटिस दे दिया, आप लोग का ये इतना इतना पैसा वापस देना है। ऐसा करके उधर में इस कमिंग सेपा में ह्यू एंड क्राई हो रहा है। मैं सरकार से या कमिश्नर लैंड से मैं यही मेरा ग्रीवेंसेस प्लेस करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, ताकि वो ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूट कीजिए कि वो सिग्रीगेट करके किसका एक्सेस है, किसका जेन्युइन है और किसको और देना चाहिए, उस चीज़ को आप सेग्रीगेट करके उस जो कंपेंसेशन अमाउंट को बांट सके। अगर एक्सेस है तो उसे रिकवर, अगर जिसका नहीं पहुंचा और मिलना चाहिए उसको देने के लिए ये एक कमिटी एक ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट करना है बोल के ये एक ग्रीवेंसेस है। और एक लास्ट में हम लोग ने ये रखा है कि जो भी आप रिकवरी करता है ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आप जैसे कि अभी तक मैं एक सवाल भी करना चाहूँगा, हमारा ACB एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट को भी हम लोग ने ये मांग रखा है कि जो भी रिकवर करेगा ट्रांसपेरेंसी वे में, किससे कितना रिकवरी किया है, किसका कितना फॉल्स बिल था, पेक बिल था, उसको लेके आप ट्रांसपेरेंसी वे में हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए जनता को ये। और ये हम लोग का ग्रीवेंसेस आज हम लोग कमिश्नर लैंड को हम लोग सबमिट करके आया। और इस बीच में मैं यही बताना चाहूँगा, स्पेशली जो हमारा बेनिफिशियरी जो ईस्ट कामेंग का लोग जो लादा सरली से अफेक्टेड हुआ है, उन सभी से मैं एक चीज़ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से और हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के थ्रू से या जो लोग पिछले बार जो बेनिफिशियरी डिप्राइव हुआ था उन सभी का तरह से अभी एक कंप्लेन आ रहा है कि जो बाकी पैसा ले चुका है और उसको रिकवरी नोटिस में नाम आया है, उन लोग ने हमारा टीम आया ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट को, और जो बेनिफिशियरीज लास्ट टाइम जो हमें पैसा नहीं मिला बोल के कंप्लेन करने वाला टीम को परेशान कर रहा है बोल के हमें खबर मिल रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहूँगा, हमने कभी ये नाम नहीं लिया कि इस फलाना आदमी का एक्सेस बिल हुआ है उसको रिकवरी करने के लिए हम लोग ने कभी नहीं कहा। हम लोग ने इन जनरल में जो हमारा ईस्ट कामेंग लादा टू सरली में जो लोग डिप्राइव हुआ है उन डिप्राइव फैमिली को जस्टिस देना है बोल के हम लोग ने कंप्लेन लेके क्लेम किया था, सरकार से डिमांड रखा था, सरकार ने एक्शन में लाया। तो अभी आप लोग का कहीं ना कहीं रिकवरी का लिस्ट में आया है, तो ये हमारा गलती नहीं है और ये डिपार्टमेंट का या सरकार का गलती होगा। उस समय आपको एक्सेस दिया भी होगा या सही दिया भी होगा। लेकिन मैं इस चीज़ में और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी इंडिविजुअल को, जैसे हमारा रमेश तक हो गया ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अन्य प्रेसिडेंट है, ये रमेश उधर में हमारा कोई बिल बना के कॉम्पेंसेशन बिल बना के अपना बेनिफिट के लिए काम नहीं किया, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिप्राइव फैमिली के लिए काम किया। रमेश को टारगेट नहीं कर सकते। और हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अन्य जनरल सेक्रेटरी हाई बगंग है, वो हाई बगंग का इंटरेस्ट में नहीं किया, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट कामेंग एंड अफेक्टेड फैमिली ऑफ लादा टू सरली उसके लिए किया। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग किसी को इंडिविजुअल टारगेट मत कीजिए, आप सरकार से लड़िए, कानून पे लड़िए, आप किसी को इंडिविजुअल मत लड़िए। हम लोग ने कानून को लड़ा, सरकार को लड़ा, सरकार ने जवाब दिया और एक्सेस हुआ ना नहीं हुआ सरकार बता रहा है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और सरकार को भी यही बोलना चाहूँगा, आप लोग का रीअसेसमेंट में 19-20 तो हुआ होगा। जब आपने शुरुआत फर्स्ट टाइम जब असेसमेंट कर रहा था उस समय में किसी का पेड़ पौधा था, किसी का घर था, असेसमेंट करने के बाद वो पेड़ पौधा को काट दिया क्योंकि रास्ता जाएगा बोल के पेड़ पौधा को काट दिया, घर को शिफ्ट कर दिया, बेरा को शिफ्ट कर दिया। अभी फिर रीअसेसमेंट में वो स्ट्रक्चर नहीं है तो किसी ना किसी का बिल तो कम हुआ होगा, तो उस कम हुआ है बोल के आप उसको रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि जो लोग एक्सेस बिल और पेक बिल बनाया उसको रिकवर करने के लिए हम लोग बोला। उसमें आपको हर किसी को पता है
दुनिया को पता है कौन पेग बिल करके फोर्जरी करके और एक्सेस बिल करके पेमेंट लिया है। सरकार को भी पता है और आम जनता को भी पता है, हमारा ऑफिसर को भी पता है। आप उसको एक्शन लेने के बजाय अभी जो जेन्युइन लैंड ओनर को आप लोग ने जाके परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये गलत बात है। लास्टली मैं यही फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार को, अभी जो लोग जेन्युइन लैंड ओनर हैं, जो कॉम्पेंसेशन मिल चुका है, जिसका 19-20 थोड़ा मोड़ा 1-2 रुपये एक्सेस हुआ होगा, लेकिन उसको तंग मत कीजिए, उसको तंग कीजिए। जो पेग बिल बना के ब्रोकर का थ्रू ऑफिसर को भी मैनिपुलेट करके जो बिल बना के खाया, उससे रिकवर कीजिए। और जिसका मैंने बार बार जिक्र कर रहा है, जिसका एक चेनेज सेम विद इन चेनेज में एक का बिल जो 2 लाख ज़्यादा आता है, एक का बिल 2 करोड़ आता है, उसे रिकवर कीजिए। और जिसका मैं एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ कि जिसका बिल 1 करोड़ 15 लाख था, आप बेनिफिशियरी को सिर्फ 45 लाख दिया, 70 लाख कहाँ गया? उस 70 लाख को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने बोला। तो इसलिए सरकार क्लियर कट ये मैसेज को सुन के और ये प्रेस बाइट्स को देख के सरकार एक्शन में आइए और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और ट्रांसपेरेंट वे में, अभी भी बोल रहा है, ट्रांसपेरेंट वे में रिकवर भी करना है और जो डिप्राइव फैमिली को कॉम्पेंसेट भी करना है। ये हमारा तरफ से, आन्या की तरफ से ग्रीवेंसेस से और रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। अगर नहीं करता, जो बाकी बचा कुचा जो हमारा डिमांड से, उसको फुलफिल करने से पहले हम लोग ने फिर आपका खिलाफ में, सरकार का खिलाफ में, डिपार्टमेंट का खिलाफ में हम लोग ने आवाज़ उठाएगा। ये हमारा तरफ से एक क्लियरिफिकेशन और ग्रीवेंसेस सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली लैंड डिपार्टमेंट, कमिश्नर लैंड डिपार्टमेंट।